ऋतुजा लेट आई आज। ऋतुजा को क्या हो गया आज लेट? सॉरी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था। यस, ऋतुजा ने बाय डिफॉल्ट लास्ट स्लाइड डाल दिया। ऋतुजा अभी जब शुरुआत हुई, ये लास्ट स्लाइड ही था, लास्ट लेक्चर का लास्ट स्लाइड था ये। Okay, so basically, I was talking about this entire mechanism of filtration of the blood and formation of the urine. Okay, so it will take place through all these three steps. पहला आता है that is known as ultrafiltration, correct? Second one is known as selective reabsorption, and the third one is known as the tubular secretion, correct? तो ये तीन steps से the entire process mechanism of filtration of the blood and formation of the urine will be completed. ठीक है? अच्छा, इसमें मेनली क्या होता है? मेनली तो here there will be reabsorption of water, reabsorption of salts, plus reabsorption of certain nutrients like glucose, reabsorption of amino acids, reabsorption of fatty acids, reabsorption of certain essential substances. ठीक है? तो salts आएंगे and some other minerals. Okay, so they all will get reabsorbed. Some of them will get reabsorbed 100%. जो 100% reabsorb होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, और जो 100% reabsorb नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया एंड यूरिक एसिड, थोड़ा सा ही रीअब्सॉर्ब होता है, पूरा होता नहीं है। सो इट्स कॉल्ड एज लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। क्यों? बिकॉज देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज लार्जर and will not allow the entry of, will not, or rather the capillaries are not permeable for the same. करेक्ट? तो ये सब होता है। सो बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फाउंड और द फंक्शन फाउंड फॉर द किडनी, जो किडनी का काम होता है। ठीक है? अदर देन दैट वी हैव अ हार्मोन हियर नोन एज द अल्डोस्टेरॉन। नाउ अल्डोस्टेरॉन व्हिच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा रीजन? एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स रीजन। सो इट इज नोन एज द एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो दैट इज नोन टू मेंटेन आवर सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? क्राउन ऑफ द किडनी ऐसा हम लोग इसको बोलते हैं ना। तो दैट इज नोन टू रिलीज अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन इज एक्चुअली नोन एज द सॉल्ट सेविंग हार्मोन। ओके, so if required, aldosterone will help in reabsorption. Okay, reabsorption of sodium or chlorides or potassium from the urine. So it is known as facultative reabsorption. Okay, this is called as facultative reabsorption. For some reason, if the blood pressure in the body falls, जो हम लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन बॉडी में ऐसा मेंटेन करने के लिए, प्रेशर मेंटेन करने के लिए सब मैकेनिज्म होता है। तो फॉर सम रीजन इफ द ब्लड प्रेशर फॉल्स, देन व्हाट हैपेंस हियर इज दैट aldosterone will be adrenal gland will be stimulated and it's going to secrete aldosterone. And what aldosterone does is that aldosterone starts reabsorbing sodium chlorides or salts from the tubules. ट्यूब्यूल से ये रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है सॉल्ट्स का। अभी सॉल्ट्स अगर ब्लड में ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो गए तो नेचुरली इट विल इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द ब्लड, राइट? तो प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर विल कम टू नॉर्मल। तो फॉर सम रीजन अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए अल्डोस्टेरॉन काम में आता है। सो दिस इज नोन एज फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। फैकल्टेटिव इसके लिए बिकॉज देयर इज समवन हु इज हेल्पिंग दिस सॉल्ट्स टू गेट रीअब्जॉर्ब। faculty, someone to which is helping the salts to get reabsorbed into the blood, इसके लिए उसको बोला गया है facultative reabsorption। और इसके साथ और एक ग्लैंड आता है, रादर दो ग्लैंड्स आते हैं। वन इज नोन एज द थायराइड ग्लैंड and the other one is called as the parathyroid gland. Thyroid gland secretes a hormone called as calcitonin. Parathyroid gland will secrete a hormone known as parathormone, and both will help to maintain the calcium ion concentration in the blood. ठीक है? तो दोनों का काम होता है to maintain the calcium ions. So other than kidneys which is naturally doing this work of reabsorption, the hormones are also helping them to reabsorb. Right, and because all these hormones are helping them to reabsorb, इसके लिए उसको हमने क्या नाम दिया? We call this as facultative
reabsorption. समझ में आ रहा है? Are you all getting this? Yes, sir. Good. तो ये एक मैकेनिज्म है छोटा सा, इसको और अच्छे से अपने को समझना है, स्पेशली अल्डोस्टेरॉन वाला मैकेनिज्म, क्योंकि कैल्शियम तो हम लोग किडनी से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होता है, तो वो हम लोग हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के टाइम पे जरूर पढ़ेंगे, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दी अल्डोस्टेरॉन का मैकेनिज्म प्रॉपरली, राइट? तो वो हम लोग अभी नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा अभी वो, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं. Now, since we have seen the entire mechanism of formation, filtration of the blood and formation of filtration हो गया blood का, तो क्या बनेगा? If there is urine, very good. If there is filtration of the blood, then it's going to form what? It's going to form the urine. Correct? So we must understand what this urine is, what is its composition, and how this urine is important for expelling the waste material. तो थोड़ा यूरिन का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री ऑफ द यूरिन. ओके, ये लास्ट स्लाइड श्रावणी. हो गया? चलो, गुड. So now let us try and understand what the urine is and what is its composition. तो उसका pH क्या होता है, composition कैसे होता है, कलर कितना कैसा होता है, कितना void होता है, मतलब amount of urine produced in a day, etc., etc. So what is the composition? So normal composition of the urine में it all normal composition जो होता है ना, जो खाना कैसा खा रहे हैं उसके ऊपर, it all depends on the food which we take and the amount of fluids which are consuming. ठीक है, बहुत ही ज्यादा फैट रिच डाइट रहेगा तो उस हिसाब से यूरिन बनेगा, बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच रहेगा तो वैसा यूरिन बनेगा, वाटर अगर हमने कम पिया तो वैसा यूरिन बनेगा, वाटर ज्यादा पी रहे तो अकॉर्डिंगली यूरिन कंपोजिशन विल चेंज. ओके, बट व्हाट इज द नॉर्मल यूरिन कंपोजिशन, क्या होता है? सो द अमाउंट ऑफ यूरिन व्हिच इज रिलीज्ड इन अ डे इज 1.2 to 1.5 liters. ठीक है, how much urine is released here? It is 1.2 to 1.5 liters. Terms and conditions apply provided you drink 2 to 2.5 or 3 liters of water every day. मतलब अगर आपने 3 लीटर पानी पिया, मच्छर मर गया, 3 लीटर पानी अगर आपने पिया तो ही इतना सारा यूरिन बनेगा. ओके, तो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. यू हैव टू ड्रिंक मिनिमम 2.5 to 3 liters ऑफ वाटर, तो ही इतना यूरिन बनेगा, अदरवाइज यूरिन फॉर्मेशन विल बी लेस. And average pH is 5 to 7. So as you can see here, actually pH जो यूरिन का होता है it is 6.5 to 7. लेकिन 5 तक जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर वी आर कंज्यूमिंग. वाटर कॉन्सेंट्रेशन अगर यूरिन में से कम हो गया तो हमारा यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है. दैट इज व्हाई द रेंज इज गिवन एज 5 to 7. बट द यूरिन विल नेवर बी अल्कलाइन. तो आप लोगों को याद है मैंने काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाया था, डू यू ऑल रिमेंबर? और उस काउंटर करंट मैकेनिज्म में वी डिस्कस्ड एज टू हाउ हाइपोटोनिक यूरिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ हाइपरटोनिक यूरिन. करेक्ट? सो दैट मैकेनिज्म इज वेरी इसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट. तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो इसके लिए पीएच विल ऑलवेज बी 5 to 7 बट विल नॉट गो बियॉन्ड 7. अल्कलाइन नहीं होगा यूरिन कभी भी. ओके, इट विल रिमेन लाइक दिस. Normal color is yellow in color due to the substance known as urochrome. What is urochrome? It's a chemical which is released by, yes, loop of Henle में होता है. Destruction of RBCs in liver. लीवर में जो आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है उससे केमिकल रिलीज होता है, दैट्स कॉल्ड एज यूरोक्रोम. And this urochrome gives this particular color. Other than bilirubin, of biliverdin, other than biliverdin, सानिका सॉरी. ठीक है, तो वो तो कलर देता ही है, बिलीवर्डिन नहीं बिलीरुबिन कलर देता है और उसके साथ यूरोक्रोम भी देता है. ओके, सो दिस इज अ नॉर्मल. अच्छा, पानी ज्यादा पिएंगे तो नेचुरली कलर ऑफ द यूरिन विल बी मोर व्हाइटिश, बट दिस इज नॉर्मल यूरिन. कैसे येलो कलर का होता है? तो अर्ली मॉर्निंग वॉइडेड यूरिन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो वो वाला. And freshly voided urine will have a typical aromatic smell that's called as urinoid smell.
फ्रेशली वॉइडेड मतलब ताजा ताजा पास किया हुआ यूरिन, ठीक है. सो दैट यूरिन विल हैव अ टिपिकल यूरिनॉइड स्मेल. लेकिन क्या होता है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली इन द पब्लिक यूरिनल्स, पब्लिक टॉयलेट्स में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि वहां पे ना एक टिपिकल ऐसे पंजेंट या फिर अमोनिया टाइप स्मेल आता है. यू नो व्हाई? बिकॉज यूरिन विल हैव, यस, बिकॉज यूरिन विल हैव यूरिया, ठीक है. And what happens while we pass urine into the toilet, that time what happens, some amount of urine might remain in that particular region which contains the urea, and this urea will be acted upon by the bacteria to convert the same into ammonia. And because urea gets converted into ammonia, therefore we are going to get this typical pungent ammonia smell. तो एक typical ammonia का odor आना चालू हो जाता है urinals में. Right, so this is a very common experience which we have. घर में भी होता है if we do not pour sufficient amount of water. Yes, it smells like ammonia, correct. ठीक है, it smells typically like ammonia. इसके लिए वो थोड़ा सा irritating भी होता है कभी कभी, आंखों के लिए, नोज के लिए बहुत ज्यादा irritating भी हो सकता है. Depends कि region कितना clean है या नहीं है. But this is a common experience which we have. Get in this? Yes or no? Good. Yes, sir. So it smells like ammonia. बस ये लिख लिया क्या आप लोगों ने ये? Done, sir. Done, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. Now what is the composition? क्या क्या होता है यूरिन के अंदर? So inorganic substance में water of course almost 95%, sodium chlorides 1%, calcium, magnesium, potassium 0.5%, and ammonia in traces. And what are the organic substances? So urea 2.5%, creatinine 1%, uric acid 0.05%. These substances are important. These are the indicators of kidney function. ओके अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, इसका मतलब ये होता है द किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली. वी कॉल दिस कंडीशन एज किडनी फेलियर और रीनल फेलियर. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इन द यूरिन. इसको कॉपी कर लो. डन. प्रज्ञा भारती सर, ईजे बार लास्ट स्लाइड. ईजे बार क्या होता है भाई? प्रज्ञा, दो लोगों ने हाथ ऊपर किया है. ओके, एंड सानिका घोड़के आणि वाळिंबे. ईजे बार स्लाइड, लास्ट स्लाइड. ईजे बार लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड ईजे बार. डन. अमन डन. सीएर हो गया ये लिख के? गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, नाउ दिस इज अबाउट द यूरिन. बाकी यूरिन के एब्नॉर्मेलिटीज होते हैं कि यूरेमिया क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, वो सब हम लोग डिसीजेस जब आएंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बोलता हूँ कि यूरिन की एब्नॉर्मेलिटीज क्या क्या होती है. ओके, सो दैट वी विल डिस्कस एट द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न दी डिसीजेस. बीमारियां पढ़ेंगे तब आएगा. दिस इज लास्ट स्लाइड. सानिका घोड़के एंड आदित्य महाजन. डन. हो गया? Done, sir. Okay, chalo. Next. Now, what is the role of kidney in osmoregulation? What is osmoregulation? Can anyone tell me? Maintaining Maintaining the salt and water balance. Very good. Maintenance of salt and water balance in the body is known as the osmoregulation. तो वहां पे काम में कौन आ रहा है? वहां पे काम में आ रहा है
kidneys. Kaise? Let us try and understand this. So role of kidneys in the osmoregulation. Now this is the typical functional unit of the kidney known as the nephron. Now as we all know that the water will be reabsorbed through the renal tubules at various levels. Jaise for example, it will be absorbed through the proximal convoluted tubule. Some amount of water will be absorbed through the descending limb of loop of Henle. Some amount will get absorbed even through the distal convoluted tubule. बराबर है. Ascending limb में नहीं होता है because ascending limb is impermeable for the reabsorption of water, right? But this is how the reabsorption will take place at various levels. Okay, and some amount will be reabsorbed even through the distal convoluted tubule. Now, if this particular reabsorption, अगर ये पूरा reabsorption नहीं होता है तो as I said ना कि सब कुछ ब्लड में चला, सब कुछ यूरिन में चला गया, बराबर है. यूरिन से वापस किधर जाना चाहिए? ब्लड में. अगर ये ब्लड में नहीं आया तो नेचुरली द ब्लड विल नॉट बी एबल टू फ्लो प्रॉपरली, या फिर वहां पे हाइड्रेशन टू द सेल्स ऑफ द टिश्यूज विल बी वेरी लेस. तो वहां पे हो जाएगा कंडीशन कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन. तो वो नहीं होना चाहिए करके वाटर रीअब्जॉर्प्शन इज मस्ट. Now, the water content of the body fluids is less than normal when the temperature is very high. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वाटर का बॉडी फ्लूइड जो कंटेंट होता है बॉडी के अंदर वाटर का, दैट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग. यू नो व्हाई? बिकॉज देयर इज स्वेट. स्वेटिंग होता है और स्वेटिंग के थ्रू व्हाट हैपेंस? स्वेटिंग के थ्रू द वाटर विल स्टार्ट गेटिंग लॉस्ट. और स्वेटिंग भी क्यों हो रहा है? टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. ड्यूरिंग सच सिचुएशन, मतलब वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन इन समर. नाउ ड्यूरिंग सच सिचुएशन व्हाट हैपेंस? ड्यूरिंग समर्स the gland which is the posterior pituitary will be stimulated. Whenever there is heat and the water is getting lost, matlab release of sweat from the body is a stimulus for the posterior pituitary, which starts releasing a hormone called as ADH. ADH stands for what? ADH stands for antidiuretic hormone. Now what is diuretic और what is diuresis? Diuresis का मतलब आता है excess urination. ठीक है. अच्छा, excess urination रहेगा तो can I say that there will be excess loss of water? Yes. बराबर है. अच्छा, अभी हम लोगों को क्या करना है? वाटर को बचाना है. क्यों बचाना है? बिकॉज समर सीजन में देयर इज वाटर लॉस थ्रू द स्वेट. इसके लिए फिर ये हार्मोन रिलीज होता है. तो उसको नाम क्या दिया है? एंटी डायूरेटिक. एंटी मीनिंग अगेंस्ट, मतलब द हार्मोन विच वर्क्स अगेंस्ट एक्सेस यूरिनेशन. Correct? The moment it is released into the blood, from blood it travels down to the kidneys, where within the kidney it starts stimulating the nephrons. ठीक है. तो ये nephrons को stimulate करना चालू कर देगा. एक मिनट, मुझे निकालना पड़ेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको. ठीक है. So antidiuretic hormone और vasopressin start stimulating the nephrons. हो जाएगा ब्लड तक और ब्लड में ये नेफ्रॉन को स्टिमुलेट करेगा, so that maximum reabsorption of the water will take place through the distal tubule and the collecting tubule. Distal convoluted tubule and collecting duct. Okay. No Khushi, it won't help in to release water in our body. It will help in reabsorption of water in our body. मतलब जो पानी का लॉस यहाँ से यूरिन से होने वाला है उसकी जगह दैट वाटर इज नाउ री एंटरिंग इन द ब्लड. करेक्ट? As large amount of water is re-entering in the blood, maintaining the water balance, so it increases the permeability of the DCT and CD for the water reabsorption. ठीक है. और अगर water reabsorb हो गया तो naturally what happens? The amount of water in the urine will be less. Solute वैसा ही है. So what will be the condition of the urine? More Concentrated urine. Concentrated. So it will be more concentrated and it's going to be less frequent. तो फ्रीक्वेंसी भी यूरिन का कम हो जाएगा क्योंकि वाटर लॉस इतना कम हो रहा है तो जरूरत ही नहीं है बार बार जाने की. Yes, Aditya, then it starts becoming dark, yellowish or almost reddish in color. Yes, that's why urine is more yellowish in the summer season, and that is why it is said that we should drink more water in summer.
गेट इन दिस, बार बार पानी क्यों पीना चाहिए? यस भक्ति, इट स्टार्ट्स बिकमिंग मोर एसिडिक, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ना। और ये क्यों हो रहा है? दिस मैकेनिज्म इज टेकिंग प्लेस बिकॉज देयर इज वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. ओके, and as there is water loss in the form of sweat, so naturally this mechanism will take place. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? हेलो. Yes, sir. हाँ, सब लोगों को आई होप समझ में आया कि मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ. ठीक है. सर वैसोप्रेसिन मतलब एडीएच है क्या? हाँ, सेम सेम दूसरा नाम है उसका वैजो, क्योंकि उसका दूसरा एक फंक्शन होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, इसके लिए वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं उसको. यस सर. हाँ ठीक है. अच्छा, अभी क्या क्वेश्चन है इधर? सर आफ्टर ईटिंग सम मेडिसिन इट आल्सो हैव डार्क येलो. हाँ, बिकॉज मेडिसिन का जो कंटेंट है ना वो रिलीज हो रहा है ना यूरिन के थ्रू, सो दैट क्रिएट्स दैट कलर. तो कभी कभी डार्क येलो हो जाता है, कभी कभी अंबर कलर का हो जाता है, कभी कभी ब्राउनिश हो जाता है, बिकॉज एक्सक्रीटरी वेस्ट करके वो रिलीज हो रहा है ना, इसके लिए. ऑस्मो रेगुलेशन के पहले से स्लाइड दिखाओ ना. वाह 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 श्रावणी, फटके मारो क्या? अभी किधर गई थी तू? यस, बिकॉज ड्रग्स आर नो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस. इधर ही थी सर, पर लिखना रहेगी. वेरी गुड. कौन सा चाहिए तुझे स्लाइड अभी? हे भगवान, क्या होगा इसका? किधर से चाहिए श्रावणी? श्रावणी, ये फोटो निकाल अभी फटाफट. Is there a tendency to urinate more in monsoon as there is? Wait, बोलता हूँ मैं आपको. ये जाने दे, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा. दिस इज ऑल्सो ओके. बस अभी यही स्लाइड है. हो गया श्रावणी? देखो, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ. somebody has asked me to explain it again. समर में क्या होता है? In case of summer, there will be loss of water, बराबर है, in the form of sweat, बराबर है. Okay. Now what happens here is that this particular process, matlab loss of water in the form of sweat, is going to stimulate your hypothalamus, and in turn hypothalamus stimulates posterior pituitary. Okay. जैसे ही posterior pituitary stimulate हो जाएगा, posterior pituitary starts releasing a hormone called as ADH, anti-diuretic hormone. And ADH will help in what? ADH will help in reabsorption of water. From where? From, yes, किधर से आएगा? From distal convoluted tubule and collecting duct. And because of this, what happens? The amount of water in the urine will be less and in the blood will be more. So urine here starts becoming concentrated and less frequent. समझ में आया? अब समझा संजीवनी?
Okay, good. Now during winter, winter में क्या होगा? Winter में is there a water loss? So there is no water loss. Correct? If there is no water loss, will there be stimulation to the hypothalamus? So there will be no stimulus to the hypothalamus. As there is no stimulus, so the pituitary, no stimulus to pituitary. Correct? No pituitary stimulus. And as there is no pituitary stimulus, then ADH secretion will stop. If ADH secretion will stop, then naturally no reabsorption. Correct? And if there is no reabsorption, then naturally the urine here will start becoming dilute and more frequent. डाइल्यूट यानी जितना कॉन्सेंट्रेटेड था उससे कम कॉन्सेंट्रेटेड, ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाएगा. ओके, समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द विंटर. एग्जैक्टली ऑपोजिट. शायद मुझे कोई तो भी पूछ रहा था इसके बारे में. या फाइन, गुड. समर में पीएच यूरिन का बताया ना मैंने, टोटल पीएच होता है 5 to 7, इसके रेंज में रहेगा. सो इट इज बिलो 7, बिलो 6 ओनली, या अराउंड 6. विंटर में इट रीचेस ऑलमोस्ट अप टू 7, ऐसे हो जाएगा. ठीक है. यूटीआई गौरव इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. It is called as urinary tract infection. Sir, did the stimulation occurs only in summer or even every time when the water is less? Every time when the water is less in our body. Even at the time when you suffer from diarrhea or vomiting like condition, that time also same process will take place. Because it's a natural tendency ना water loss को prevent करना है. ठीक है भक्ति? डन, समझ में आया आपको ये प्रोसेस पूरा? आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस. सेम यहाँ पे दिया हुआ है कि हायर अमाउंट ऑफ वाटर इन द ब्लड ड्यूरिंग कोल्ड सीजन. जब एकदम सीजन कोल्ड रहता है तो उस टाइम पे नेचुरली रीअब्जॉर्प्शन इन द ऑफ द वाटर फ्रॉम द टिब्यूल्स विल बी स्टॉप्ड. सो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द ब्लड, एडीएच सिक्रीशन हियर विल स्टॉप. ठीक है. सो लार्ज अमाउंट ऑफ, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. Students, just give me a minute, please.
सॉरी आ गया मैं। हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स? अरे कितने क्वेश्चंस, तुम लोग करते क्या हो रे मुंगेरी लाल सर? मतलब अगर विंटर में ज्यादा से ज्यादा हमने एक्सरसाइज किया और स्वेट मींस वाटर इज लॉस्ट, तो तब भी ऐसा ही होगा। ये क्या है, समझ में नहीं आया मुझे। अमन अमन कुछ भी पूछता है। whenever there is excess water loss, ये मैकेनिज्म होगा ही ना बेटा। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट नॉर्मल कंडीशन, जहां पे अपना एक्सरसाइज कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, सिर्फ खा पी के बैठ रहे हो और अपना अपना काम कर रहे हो बस। अदरवाइज whenever there is sweating, whenever there is excess water loss, ये मैकेनिज्म होगा एडीएच वाला। नेक्स्ट, खुशी का क्या कहना है? सर सम पीपल गो टू टॉयलेट whenever they are afraid or fear of something. Why? अरे बाप रे। So that's a stimulus बेटा। Stimulus that's called as adrenal sorry इमरजेंसी हार्मोन का स्टिमुलस होता है। व्हाट इज दैट? भूल गया मैं भी। इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन। एड्रेनालिन का स्टिमुलस है वो। ओके, तो उसकी वजह से होता है वो। Does ADH affect sweat? No, ADH will not affect the sweat. Means how? Why does this? अच्छा, ओके, खुशी को समझा। एड्रेनालिन रश में एक्चुअली क्या होता है? एड्रेनालिन रश में बेसिकली देयर इज श्रावणी स्टिमुलस ऑफ टू द हार्ट। सो सम एक्टिविटीज आर स्टिमुलेटेड, सम एक्टिविटीज आर इनहिबिटेड। जैसे सलाइवेशन इज इनहिबिटेड, इसके लिए जब डर लगता है तो ड्राइनेस आता है माउथ में। और हार्ट का स्टिमुलस बढ़ता है तो सर्कुलेशन बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा तो किडनी का फंक्शन बढ़ेगा, किडनी का फंक्शन बढ़ा तो यूरिन फॉर्मेशन विल बी मोर, इफ इट इज मोर देन लॉस ऑफ यूरिन विल बी मोर। ऐसा हो जाता है वो। सर अगर हमने नॉर्मल होते तब आधे एडीएच सिक्रेट नहीं करते ना? हाँ, नॉर्मल होते मतलब क्या कि जब ये मैकेनिज्म नहीं हो रहा, मतलब ये सारे कंडीशंस प्रॉपर चल रहे, तो उस टाइम पे एडीएच विल नॉट बी सिक्रेटेड। सी एनी हार्मोन विल बी सिक्रेटेड ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ऐसे अननेसेसरी हार्मोन ब्लड में होता नहीं है। So hormone secretion requires a proper stimulus from the different organs, which the organs will send it through the hypothalamus. Always remember this. Sir, what is the word written after dilute and more is lost? किधर है? किधर है? सर लास्ट स्लाइड पे पूछ। ये डाइल्यूट एंड मोर फ्रीक्वेंट, ज्यादा फ्रीक्वेंट होगा। श्रावणी समझा एड्रेनालिन रश में क्या होता है? क्या ड्रॉ करेगी सानिका? तू कुछ ड्रॉ मत कर। सर व्हाट वर्ड इज रिटन आफ्टर डाइल्यूट? ये हो गया ना आदित्य? क्या किया है? अच्छा ठीक है ना, ओके किया है तो बढ़िया है। ये हो गया यहाँ तक, ठीक समझ में आया? यूरिन सेपरेशन कैसे होता है? सो दिस डिक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ द डीसीटी एंड सीडी एंड दस द यूरिन विल बी लॉस्ट ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में यूरिन का लॉस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द हाइपरटोनिसिटी एंड हाइपोटोनिसिटी ऑफ द यूरिन विल बी मेंटेन्ड। सो दस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, जैसा जरूरत रहेगा वैसा। ठीक है, ये अभी मैंने बताया था आपको पहले भी। सो इट इज नोन एज द फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। चाहिए इधर वर्ड, इट इज ओनली एब्जॉर्प्शन, यू हैव टू राइट हियर एज री। इट इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे दिस इज हाइपरटोनिक यूरिन, दिस वन इज दी हाइपोटोनिक यूरिन। ओके, समझा भाई लोग और उनकी बहन लोग? गुड। यूरिन को देख के अमन खुश हो गया। डन। चलो नेक्स्ट,
Now, low secretion of ADH. For some reason, if there is low secretion of ADH, मतलब conditions कैसे भी हो, ADH is not getting secreted. मतलब this is an abnormality, ना? तो low secretion of ADH will lead to a condition or a disease known as diabetes insipidus. मतलब there is some issue at the level of either hypothalamus or pituitary. ठीक है, वो दो लेवल पे कुछ तो इशू है, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ADH इज नॉट गेटिंग सिक्रेटेड, एंड इफ ADH इज नॉट गेटिंग सिक्रेटेड देन इट रिलीज कॉजेस अ डिसीज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज मेलाइटस अलग, ये होता है इंसिपिडस. ठीक है, फर्क क्या है? सो इट्स अ कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीयूरिया और डायूरेसिस, which is common condition for diabetes mellitus as well. Okay, diabetes का मतलब आता है excess urination, polyuria. insipidus का मतलब आता है tasteless. और mellitus, diabetes mellitus में mellitus का मीनिंग आता है honey like sweet. Okay, समझ में आ रहा है? So it's an excess urination where this urine does not have the sugar. Okay, तो उसको नाम दिया diabetes insipidus. ठीक है, so excretion of large amount of severely dilute urine will take place. So it is known as polydipsia. It is known as polyuria, followed by polydipsia and or excessive thirst. क्योंकि यूरिन का लॉस इतना ज्यादा हो रहा है तो नेचुरली यहाँ पे थर्स्ट भी होगा. सो पॉलीडिप्सिया का मीनिंग आता है एक्सेसिव थर्स्ट, एंड पॉलीफेजिया मतलब एक्सेस हंगर. वो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस आते हैं. सर कुछ लोग को डिसीज होता है तब वो लोग बहुत यूरिनेट करते हैं तो उन्हें वॉक करने बोलते हैं, उसका भी रीजन ये ही होता है क्या? नहीं, ये नहीं पता लोहिता मुझे. वाई अगर यूरिन ज्यादा होगा तो वॉक करने के लिए बताएंगे. कुछ अलग आपने, वो अलग डिसीज रहेगा, ये अलग है. ओके, एनीवे ये समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दो थोड़ा. The condition is known as diabetes insipidus, meaning there is low secretion or absence of ADH. So water is getting lost. Excess water loss will take place here. So that's called as polyuria or diuresis. Okay. Along with that, because excess urine is lost, so naturally there will be polydipsia. मतलब excess thirst. पानी ज्यादा जा रहा है, इसके लिए thirst भी ज्यादा लग रहा है, प्यास भी ज्यादा लग रहा है. So that is the condition called as diabetes insipidus. ये ADH से related है, very important. I hope everyone is getting this. सब लोगों को समझ रहा है ना? Yes, sir. Sir, I never understand what diabetes as a disease means. Very good. Sir, how it is related to sugar? वाह 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 वाह. Mr. Gaurav. देखो क्या होता है, हम लोग क्या खाते हैं गौरव खाने में? वेरी गुड, स्टार्च. ओके, स्टार्च का हमारे बॉडी में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू व्हाट? हेलो, ग्लूकोज. वेरी गुड, ग्लूकोज. फिर ये इंटेस्टाइन से, अरे रुको श्रावणी अभी थोड़ा 2 मिनट, बार बार एक ही मैसेज मत डाल. ग्लूकोज विल बी रिलीज्ड where glucose will be released? गौरव, अरे इंटेस्टाइन में तो ग्लूकोज बना ना भाई मेरे. ब्लड में. माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, बराबर है. मीनिंग कैन आई से दैट देयर इज अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड और शुगर इन द ब्लड? गौरव, यस. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर लेवल, BSL. यहां तक ठीक? अब ये ब्लड में से ये ग्लूकोज किधर जाएगा? ब्लड में से ये ग्लूकोज जाएगा सेल के अंदर. क्यों सेल में जाएगा? बिकॉज सेल विल यूटिलाइज दिस ग्लूकोज टू प्रोड्यूस व्हाट? ATP. लेकिन ये ब्लड में से ग्लूकोज को ब्लड में से सेल तक लेके जाने का काम कौन कर रहा है? इट इज डन बाय इंसुलिन. गौरव, हाँ.
तो अगर इंसुलिन, मतलब इंसुलिन ने क्या किया, जो ग्लूकोज जमा हो गया था ब्लड में उसको सेल में लेकर गए, सो दैट द ब्लड शुगर लेवल विल रिमेन नॉर्मल। ओके, अच्छा अभी अगर इंसुलिन ही नहीं है और हम लोग खाना तो खा रहे हैं ना, खाना तो बंद नहीं होगा, मतलब कैन आई से दैट देयर विल बी अ टाइम व्हेन दिस ब्लड शुगर लेवल विल इंक्रीज? गुड, so increase in blood sugar level is known as what? Diabetes mellitus। mellitus इसके लिए क्योंकि शुगर लेवल अगर 190 मिलीग्राम पर डीएल के ऊपर चला जाता है इन द ब्लड, देन दिस शुगर स्टार्ट्स गेटिंग रिलीज्ड इन द यूरिन, तो ये सीधा यूरिन में रिलीज होना चालू हो जाता है। सो यूरिन बिकम स्वीट लाइक हनी, इसके लिए उसको नाम दिया है डायबिटीज मेलाइटस। समझा गौरव? गुड, चलो हाँ अभी श्रावणी रुक, तेरा क्वेश्चन में देखता हूँ। हाँ श्रावणी का क्वेश्चन, हाँ डायबिटीज मेलाइटस एंड इंसिपिडस के और थोड़े डिफरेंस बताओ ना। ओके एक मिनट, पहले कुछ तो भी खुशी का क्वेश्चन है। सर इस वजह से डायबिटीज के पेशेंट ज्यादा थर्स्टी, यस करेक्ट, इट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली। डायबिटीज इंसिपिडस और मेलाइटस में श्रावणी यही बेसिक डिफरेंस है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ओके श्रावणी, दिस इज द ओनली डिफरेंस। बाकी डायबिटीज मेलाइटस में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं, इंसिपिडस में इतने ज्यादा होते नहीं है। ओके, व्हाट इज द कॉज ऑफ डायबिटीज? कॉज ऑफ डायबिटीज इज इधर इंजुरी टू द पैनक्रियास, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियास, और नेचुरल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास, ऐसा कुछ अलग अलग कॉजेस हो सकते हैं। तो सर यूरिन स्वीट होने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, होने के लिए नहीं होता है यूरिन स्वीट। यूरिन इज बिकमिंग स्वीट बिकॉज एक्सेस ग्लूकोज इज गेटिंग रिलीज थ्रू द किडनी ना, मतलब वो सबसे डेंजर कंडीशन है। सो चांसेस ऑफ रीनल फेलियर आर देयर अंडर सच सिचुएशन, एंड व्हेन द डायबिटीज लेवल इज लो, तो डायबिटीज लेवल कब लो होता है खुशी? डायबिटीज लेवल ऐसे लो कुछ नहीं होता है। हेरिडिटी इज वन रीजन, भक्ति। अच्छा गुड, श्रावणी ने बताया कि डायबिटीज वाला मैकेनिज्म डाइजेशन वाले चैप्टर में भी बताया था। गुड, थैंक यू श्रावणी। ये गौरव को बोल तू बाद में। क्या क्वेश्चन था यार, चलो आगे बढ़ते। मुझे नहीं पता, अभी झगड़ो मत, छोड़ो। सर व्हेन आदित्य महाजन हैज रेज्ड द हैंड, आदित्य महाजन को क्या हो गया? बोल आदित्य। Sir, I had a doubt. हाँ बोल। I had also posted this in the chat box. Sir, so when this first condition happens, diabetes insipidus one, so are the patients given insulin shots? No, because it is not because of insulin, na? Yes, sir. It is because of what? ADH. ADH. तो उनको ADH प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। ओके, Yes, मेलाइटस रहेगा तो उनको इंसुलिन की जरूरत है ना? yes, sir. जो अभी मैंने समझाया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन किधर से आ गया? चलो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन थोड़ा देख लेते हैं। ओके, कि किडनी फंक्शन, ये पूरा यूरिन का और ये सब कॉन्सेप्ट हो गया, और हम लोगों ने थोड़ा सा ऑस्मो रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट भी देख लिया कि कैसे वाटर बैलेंस इज मेंटेन। सॉल्ट बैलेंस के लिए अल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म है, वो इसके आगे आएगा। Okay, what is the regulation of how regulation of the kidney function takes place? Meaning, what is that which is responsible for controlling or regulating the mechanism of osmoregulation or whatever function which the kidney is doing? Now, regulation of the kidney function is done with the help of hypothalamus. Then there is another important structure known as juxtaglomerular apparatus. Okay. And then of course there is another important structure known as the heart. हार्ट के जो वॉल होते हैं, एट्रिया के, राइट एट्रियम के जो वॉल होते हैं, दे आर गोइंग टू सीक्रेट अ स्पेशलाइज्ड हार्मोन फॉर कंट्रोलिंग दिस। ओके, तो तीन है, कौन कौन सा? सबसे पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, एंड थर्ड वन इज दी हार्ट। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। विल स्टार्ट फर्स्ट विद दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कंट्रोल ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है कि क्या होता है। नाउ
Hypothalamus within it is going to have a center. That center is known as osmoreceptor. Okay, so this center is called as osmoreceptor. प्रज्ञा रुक ना जरा, अभी खत्म कर लेते हैं ना, उसके बाद बोलता हूं मैं. वेट. हो गया लोहिता? ये क्या लिखना लोहिता? डायरेक्ट हेडिंग देना बेटा, हाइपोथैलेमस, एंड स्टार्ट विद दिस. हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ सब लोग. Okay, hypothalamus will have this osmoreceptor which is a type of center controlling a particular activity. कौन सा activity control कर रहा है? Osmoregulation का. Okay, now this osmoregulator will get activated whenever there is high concentration of body fluids. Whenever there is high concentration of body fluids, इसका मतलब क्या हो गया? Water content in the body fluids is less. इसके लिए बॉडी फ्लूइड्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब पीएच उनका कम हो चुका है. आर यू गेटिंग दिस? ठीक है. सो दैट टाइम दीज ऑस्मोरिसेप्टर्स विल बी स्टिमुलेटेड, एंड दीज ऑस्मोस्टिमुलेटर्स देन आर गोइंग टू स्टिमुलेट द पिट्यूटरी, and when the pituitary is stimulated by hypothalamus, then this will start releasing a hormone known as ADH, and thus then ADH controls all these mechanism. Okay, ADH will be released from the posterior pituitary. Okay, ADH will be released from the posterior pituitary, known as neurohypophysis. Neurohypophysis is nothing but the posterior pituitary. Okay, so that's called as the neurohypophysis, right? तो यहां से रिलीज होगा. ये मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी पढ़ा है अर्लियर. अमन, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने अभी वर्ड्स बदल दिए यहाँ पे. हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? बिकॉज इट हैज द ऑस्मोरिसेप्टर्स व्हिच विल गेट एक्टिवेटेड व्हेन देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. मतलब water concentration is less, amount of water in the body fluids is less, so that time ADH will be released. Okay, and then this ADH will help in what? ADH will stimulate the reabsorption of the blood, reabsorption of the water from the DCT and collecting duct, so it increases the permeability of the renal tubules, and thus the large amount of water will get reabsorbed. यहाँ तक ठीक? Yes, sir. ठीक है. तो टिपिकल वही मैकेनिज्म है जो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, राइट? नाउ large amount of water in the blood will be reabsorbed here. So then when the amount of blood in the amount of water in the blood is more, it's going to suppress the osmoreceptor. मतलब क्या? अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो नेचुरली क्या करेगा? एक फीडबैक मैकेनिज्म देगा हाइपोथैलेमस को not to release ADH. क्यों? क्योंकि अभी water amount in the blood is enough to maintain the होमियोस्टासिस. जितना चाहिए उतना पानी अभी आ गया, तो वो क्या करेगा? वो सप्रेस करेगा ऑस्मोरिसेप्टर्स को. मतलब इट सेंड्स अ फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस नॉट टू स्टिमुलेट पिट्यूटरी. तो हाइपोथैलेमस अपना स्टिमुलेशन बंद कर देगा. व्हेन द हाइपोथैलेमस स्टॉप्स इट्स स्टिमुलेशन, ADH secretion is inhibited. It stops the ADH secretion. Okay, and once the ADH secretion stops, then the further reabsorption of water will also stop. Get in this? तो ये बंद हो जाएगा. समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा था, राइट? सेकंड पार्ट भले ही थोड़ा सा ये था. Now, ADH also constricts the blood vessels to increase the blood pressure. ठीक है, that is why it is also known as vasopressin. वैसो का मतलब ब्लड वेसल, प्रेसिन का मतलब टू प्रेस, करेक्ट? कॉम्प्रेस. तो वैसोप्रेसिन का काम क्या होता है? टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. सो इट इंक्रीजेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो ब्लड का फिल्ट्रेशन भी यहाँ पे बढ़ जाएगा. एंड दिस कैन ऑल्सो हेल्प
in reabsorption or excess loss of water to maintain the blood pressure. Okay, so this is another effect of ADH, that is to increase the glomerular filtration rate. मतलब filtration बढ़ा देगा. Are you getting this? Hello. Yes, sir. Yes, sir. समझ में नहीं आएगा तो प्लीज पूछ लो. इसको वासोप्रेसिन क्यों बोलते हैं? समझ में आया? फॉर सम रीजन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर ही अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया, फॉल हो गया, जो हमको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अंदर ऑर्गन्स को समझ में आ रहा है. ओके, सो अंडर सच सिचुएशन अगेन व्हाट इज रिलीज्ड? एडीएच. फिर यहां पे ये एडीएच क्या काम करेगा? इट विल वर्क ऑन द ब्लड वेसल्स एंड विल कंस्ट्रिक्ट देम. और जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो इट इंक्रीजेस द जीएफआर एज वेल. लेकिन ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए तो ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा ना. No, they will not constrict only near the nephron, they will constrict everywhere and it will have its effect, generalized effect. ठीक है, क्योंकि पर्पस क्या है? जो ब्लड प्रेशर फॉल हो गया है उसको बढ़ाना है. ओके, Yes, sir. हाँ, यानी जहां जहां पे भी आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है या फिर जहां पे भी ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर कम है, वो रीजन में ये काम करेगा. सपोज ग्लोमेरुलस में प्रेशर कम है या फिर आर्टेरियल डिफरेंट आर्टेरियल में प्रेशर कम है तो वहां पे काम करेगा. Get in this? Purpose is to maintain the blood pressure within the body. Okay, गौरव, गुड. तो ये एक काम रहेगा इसका. दूसरा कौन सा आता है? सेकंड वन इज ऑफ कोर्स द जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus. नाउ थोड़ा ध्यान दो इधर. हाँ, नाउ DCT will always lie close to the glomerulus. हमने क्या किया? क्रॉस सेक्शन लिया है. तो यू कैन सी दिस इज द कैनाल ऑफ द DCT, डिस्टल ट्यूब्यूल का ये कैनाल है. सो इट ऑलवेज लाइज क्लोज टू द glomerulus, so that between the afferent arteriole and DCT there is a structure, the wall of cells is formed. This is known as juxtaglomerular cells. Again, DCT, that is distal convoluted tubule, lies close to glomerulus. Because of that, what happens? It starts creating the cellular lining between the afferent arteriole and distal tubule. तो यहाँ पे बीच में इधर एक सेल का लाइनिंग बनेगा जिसको हमने क्या नाम दिया है? We call that as juxtaglomerular cells. Now, what are these juxtaglomerular cells? They are known to secrete an enzyme called as renin. Okay, तो यहाँ पे रेनिन एंजाइम which is going to control the blood pressure. अभी रेनिन का स्पेलिंग देखो क्या है? RENIN. जो स्टमक में रेनिन था that was RENNIN. Is it clear? यहाँ तक ठीक है? हाँ, अभी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को पढ़ना है, that is known as renin angiotensin aldosterone system. It is commonly called as RAS. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, अरे यार ये क्या हो गया? एक मिनट. हाँ, थोड़ा ध्यान दे इधर. अमन, टाइम पास मत कर. खुशी वानखेड़े सर, एक सेकंड, लास्ट स्लाइड. हाँ, एक मिनट. हाँ बेटा, खुशी क्या हो रहा है? तू बार बार बाहर क्यों जा रही है? ये वाला स्लाइड. डन. ओके, थोड़ा ध्यान दो इधर. अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम. रेनिन कहां से सिक्रेट हो रहा है? रेनिन इज गेटिंग सिक्रेटेड फ्रॉम juxtaglomerular apparatus. वो किधर होता है? इट्स अ सेल लाइनिंग प्रेजेंट बिटवीन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट आर्टेरियोल. ओके,
चलो अभी ध्यान दो इधर. Now what happens here is that for some reason if inside the body the blood pressure is low, okay, अगर blood pressure हमारा कम हो गया, so that time naturally glomerular filtration rate will also reduce. क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो फिल्ट्रेशन रेट भी हमारा कम हो गया. फिल्ट्रेशन रेट जब कम होता है तो इट स्टिमुलेट्स द juxtaglomerular cells. Correct? The moment the juxtaglomerular cells are stimulated, they will start releasing a hormone known as renin, or rather enzyme called as renin. Okay, this renin will be carried from the blood into the liver. कहाँ जाएगा? Renin blood से किधर जा रहा है? Liver के अंदर, where inside the liver we have a chemical compound called as angiotensinogen. This is an inactive compound. This inactive angiotensinogen is now converted into angiotensin 1. And angiotensin 1 will further get converted into angiotensin 2 with the help of another enzyme called as angiotensin converting enzyme, ACE, which is secreted by the cells of lungs. Okay? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. सब सो गए? यस सर, समझे सर. हाँ, एक मिनट, मैं ये इनएक्टिव यहां से निकाल देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. Okay, angiotensinogen is an inactive substance, will be made active with the help of renin. Renin will convert angiotensinogen into angiotensin 1. Angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 by ACE, that is angiotensin converting enzyme, which is secreted by the cells of the lungs. Okay, especially the blood vessels which are present in the lungs. तो उनके सेल से ये रिलीज होता है. Now, angiotensin 2 will have two mechanism. कौन कौन सा? सबसे पहला तो it will be considered as a vasoconstrictor. मतलब ये क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को constrict करेगा. जैसे ही ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? जो ब्लड प्रेशर कम हो गया था वो बढ़ना चालू हो जाएगा. यहां तक ठीक? यस सर. गुड. दूसरा इफेक्ट देखो क्या है. सो दिस इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. दूसरा इफेक्ट आता है, इट स्टिम्युलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिक्रेट अ हार्मोन नोन एज aldosterone. Now aldosterone here is known as the salt saving hormone. मतलब ये क्या करेगा? Aldosterone here will start reabsorption of sodium along with the water from the nephrons. Nephron यानी tubules, renal tubule. तो renal tubule से aldosterone will start reabsorption of the salts. अगर salts के साथ salt reabsorb हो गए, मतलब salt urine से किधर चला गया? blood में. अगर ये blood में चला जाएगा तो naturally the blood will become thick. और अगर blood thick हो गया तो again it's going to increase the blood pressure. Clear? So this is the mechanism. तो इसको हमने क्या नाम दिया है? We call this as renin angiotensin aldosterone system. That's called as RAS. RAAS. किसी को कुछ डाउट्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, तकलीफ, परेशानी, कंफ्यूजन? Yes or no? नो सर. Good. Please write this down.
हो गया? नो सर। बुशरा क्या नो लिखा तूने? बुशरा नहीं समझा? अच्छा, कोई डाउट नहीं ऐसा, ओके ओके, चलो लिखो। दीपंकर शिंदे, क्या आवाज किया दीपंकर ने? यस, रेनिन विल एक्टिवेट, बराबर है अमन। सर पोटेंट vasoconstrictor means क्या? पोटेंट वाजो कंस्ट्रिक्टर, पोटेंट मतलब हाईली इफेक्टिव, वाजो कंस्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। yes sir. फिनिश्ड? सर आपने वो जो साइड में सेल्स ऑफ लंग्स ब्लड वेसल्स वो क्या लिखा है? सेल्स ऑफ द लंग्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, मतलब लंग्स के जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उधर के सेल्स। झाला? Sir, as there is reabsorption of salt to दोनों मैकेनिज्म मिलकर ये काम करेंगे ना अमन? चलो हो गया, डन, आगे बढ़े। यस सर। So naturally is going to increase the GFR also, pressure बढ़ेगा तो GFR बढ़ेगा. So this is known as renin angiotensin aldosterone system. Okay, so ये पूरा ऐसा सिस्टम होता है. So renin angiotensin activates renal retention of the fluid and compensates the fall in blood pressure. मतलब ये क्या करेगा? रीनल रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड मतलब क्या? किडनी से जो फ्लूइड बाहर जा रहा था उसको रिटेन कर लिया, उसको वापस ब्लड के अंदर बुला लिया. ओके, सो दैट्स कॉल्ड एज रीनल रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड, राइट? So this will help in this entire mechanism. So I hope everyone has understood the regulation through RAS. Okay, right? And the last mechanism is through the heart. Heart में क्या होता है? Last slide.
ये Yes, sir, done. एक मिनट, हाँ. चलो आगे बढ़े. Now, the last one is the regulation with the help of heart. अभी heart से क्या regulation और कैसे होता है? Let us try and understand this. The third last mechanism. Now, heart, the atria, the wall of the atria, that is right atrium, will have a hormone called as natriuretic hormone. Atrial natriuretic hormone or factor. Okay, this is released through the cells of the right atrium, walls of the right atrium. Right, and this is going to produce this NAF, which is of course in response to the high blood volume. मतलब blood pressure अगर for some reason if the blood pressure in our body increases, so that time NANF or ANH will be released, and what it does is that this causes increased excretion of sodium and water, that is natriuresis. मतलब क्या कर रहा है? सोडियम का और वाटर का रिलीज बढ़ा रहा है. मतलब मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर विल बी रिलीज्ड आउट फ्रॉम द ब्लड. अगर ब्लड से वाटर का और सोडियम का लॉस होता है तो नेचुरली इट विल हेल्प इन डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर. तो जो हाई ब्लड प्रेशर था वो बन जाएगा लो. Okay, so this is because there is excess release of sodium called as natriuresis. That is why the hormone is known as natriuretic hormone or factor. समझ में आ रहा है? ठीक है. So this is another mechanism जो heart के अंदर से होता है. So increase sodium excretion results in decline of aldosterone secretion, क्योंकि सोडियम ज्यादा रिलीज हो गया तो अल्डोस्टेरॉन कम हो जाएगा. So therefore ANH is considered as antagonistic to aldosterone. अल्डोस्टेरॉन क्या करता है? अल्डोस्टेरॉन रीअब्सॉर्ब करके सोडियम को ब्लड के अंदर लाता है. ANH क्या कर रहा है? ANH is releasing the sodium from blood into the urine. मतलब ब्लड से यूरिन में डाल रहा है. और अल्डोस्टेरॉन एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहा है, इसके लिए उसको बोला गया है एंटागोनिस्टिक हार्मोन. Okay, so ANH is always going to be antagonistic to the aldosterone. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, गुड मॉर्निंग. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. मुझे लगा सब लोग सो गए. ठीक है. So increase in the blood flow to the atria naturally will secrete ANF or ANH. ठीक है, and this causes vasodilation and decrease in the blood pressure, and thus it checks the renin angiotensin mechanism as well. तो सबको रोकने के लिए ANF या फिर ANH रिलीज होता है. किसको? एंजियोटेंसिन और रेनिन मैकेनिज्म को भी, और प्लस अल्डोस्टेरॉन को भी. तो दोनों काम हो जाते हैं. ठीक है. So ANF is going to do vasodilation also, and ANF will increase the excretion of sodium also. Exactly opposite to aldosterone and renin angiotensin. I hope everyone is getting this. Exact opposite लिखना है ANF के लिए. ठीक है? ठीक है? Please show the last slide. कौन सा? ये वाला. Yes, sir. हाँ, ये समन. सो हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो ANF विल बी रिलीज्ड, और कम होता है तो RAS काम करता है, RAAS. हो गया? Yes, sir. Okay, good. So now this is also done.
Yes, sir. हाँ, good. So basically renin angiotensin mechanism is going to increase the blood pressure, whereas atrial natriuretic hormone will decrease the blood pressure, जो ब्लड प्रेशर को कम करेगा. दोनों के इफेक्ट सेम रहेंगे. RAAS में क्या हो रहा है? There is reabsorption of water, salt and water, and along with that it also helps in vasoconstriction. Correct? Hello. Yes, sir. और वहीं ANF का काम क्या रहेगा, या ANH का काम क्या रहेगा? ANH will help in increasing the excretion of sodium and water. Absorb नहीं कर रहा है, रिलीज कर रहा है. Plus it helps in vasodilation as well. समझा? Yes, sir. तो अगर रास काम करेगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. और ANF काम करेगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. गुड. एंड बोथ विल हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड प्रेशर. मतलब हम लोगों को फील नहीं हो रहा है, यानी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो मुझे चक्कर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा. मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया तो मैं फेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा. दिस इज अ मैकेनिज्म व्हिच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस. नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए काम में आता है. ठीक है. सो ये हो गया हमारा रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन. अब ये लास्ट पार्ट है ये टॉपिक का, दैट इज डिसीजेस ऑफ द किडनी. और उसके बाद आएगा अदर देन किडनीज, व्हाट आर द अदर ऑर्गन्स ऑफ सेकेंडरी ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन. ओके, तो ये हम लोगों को पढ़ना है. दिस इज लास्ट स्लाइड. यस, डिसीजेस इज द फेवरेट पार्ट. ब्रेक लेना है 5 मिनट का. This is especially for Aurangabad. Hello. सर ब्रेक मत दो, जल्दी छोड़ दो. ब्रेक मत दो, जल्दी छोड़ दो. चलो ठीक है. आदित्य सिंह सर प्लीज 5 मिनट्स का ब्रेक. जल्दी क्या छोड़ने का रे. चलो एक काम करते, एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं. थोड़ा मैं भी ब्रेक ले लेता हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू, क्योंकि सुबह मैंने ऑफलाइन भी लिया है लेक्चर्स कुछ. ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक. अभी हुआ है 6:07 PM को मिलते हैं. ओके चलो. ओके चलो, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन इज डन. किडनी फेलियर पढ़ते हैं. नाउ किडनी फेलियर इज बेसिकली व्हाट, वेयर द फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म फेल्स. जहां पे फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म बंद हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं किडनी फेलियर. ओके, किडनी फेलियर और रीनल फेलियर इज व्हाट वी कॉल दिस एज. सो इट्स अ कंडीशन in which the kidneys fail to filter the toxins and waste products from the body. So what happens, whatever toxic products which are produced here, they will start getting circulated again in the blood. And as the amount of waste products like urea, uric acid or even creatinine, if that amount increases in the blood, naturally it's going to affect your other systems. ठीक है. सो किडनी फेलियर में बेसिकली देयर इज डिक्रीज्ड इन GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका कम हो जाएगा. ओके, नाउ रीनल फेलियर इज डिटेक्टेड बाय इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सीरम क्रिएटिनिन. जो मैं आपको पहले भी बोल रहा था बार बार, सीरम क्रिएटिनिन लेवल इज बेसिकली द बेंचमार्क for us to understand whether the kidneys are functioning normally or no. ठीक है. So there will be abnormal fluid levels in the body, deranged acid levels, abnormal levels of potassium, calcium and phosphate, that is PO4. Anemia will be there. What is anemia? Meaning decrease in hemoglobin count. Along with that there will be hematuria, which is nothing but blood loss of blood in the urine. Plus there will be proteinuria, meaning there is loss of proteins in the urine. ठीक है. सो ये सारे कंप्लेंट्स आना चालू हो जाएंगे किडनी फेलियर के अंदर. ठीक है. सो दिस आर द साइंस ऑफ किडनी फेलियर. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? ये वाला दिया, इसके भी पहले वाला.
This one. Done, sir. Now this one ये हो गया. Yes, sir. I know kidney बहुत cute है. Write down these are the signs of kidney failure or renal failure. Sorry. Done. Done, sir. Okay. Now अभी इस क्या हुआ, इशिता ने नो बोला. लिखो लिखो. एक मिनट ना, वो बाहर जरा आवाज आ रहा है, मैं थोड़ा कम करता हूँ उसको. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ना अभी दो टाइप का किडनी फेलियर होता है. वन इज नोन एज एक्यूट रिनल फेलियर, ARF जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड द सेकंड वन इज CRF, स्टैंड्स फॉर क्रॉनिक रिनल फेलियर. So long-term kidney disease, it's a long-term kidney disease having significant effect on the other diseases. For example, cardiovascular diseases. ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, किडनी फेलियर है लॉन्ग टर्म. ऐसा नहीं कि आज किडनी फेल हो गया कल मर गया, ऐसा नहीं होगा. सो इट विल कंटिन्यू, द लाइफ विल कंटिन्यू, द लाइफ विल प्रोलॉन्ग, बट इट इज गोइंग टू अफेक्ट द हार्ट एज वेल मेजरली, एंड ऑफ कोर्स द अदर ऑर्गन्स आल्सो विल स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड. ठीक है, लेकिन दो टाइप में आएगा, वन इज ARF एंड द अदर वन इज CRF. सो लेट अस सी कि ये टाइप्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहला, as I said, two types of kidney failures are there. One is known as the acute kidney failure or acute kidney injury, AKI जिसको बोलते हैं, and the second one is the chronic kidney disease, CKD, which is also known as chronic renal failure, and this one is known as ARF, acute renal failure. Okay, तो ऐसे ये दो कंडीशंस है. ठीक है, वन इज द एक्यूट किडनी इंजुरी, AKI जिसको बोलते हैं, एंड द सेकंड वन इज क्रॉनिक किडनी डिसीज और CKD. लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन कि ये है क्या. नाउ द टाइप ऑफ रिनल फेलियर इज डिटेक्टेड बाय ट्रेंड इन द सीरम क्रिएटिनिन. मतलब क्या, how much is the serum creatinine in the blood, whether it is very low but it is getting prolonged for months and it is constant like that, or it is increasing, or there is sudden increase in the creatinine level. On that basis we have these two different types. ठीक है, so serum creatinine becomes your benchmark for, एक मिनट. See you sir.
Okay, so as I said, serum creatinine is basically the benchmark for us to understand whether the condition is in the failure or no. तो आपको creatinine levels हमेशा check करने पड़ेंगे blood के अंदर. Now, acute kidney injury is differentiated from the chronic kidney disease, ठीक है, which is of course on the basis of the USG, ultrasonography. ठीक है, so CKD, that is chronic kidney disease, leads to anemia and reduced kidney size. मतलब acute renal failure में kidney size will not reduce, but chronic renal failure में kidney size will reduce. So on that basis, on the basis of ultrasonography, this is USG का photo है. So on the basis of ultrasonography, ultrasonogram, you can understand whether it's a case of acute kidney injury or it's a case of CKD. That is chronic kidney disease. ठीक है, डिफरेंस दिया हुआ है, so that we will try to understand. Number 1, what are the symptoms of AKI? तो सबसे पहला तो आएगा ओलिगोयूरिया, मतलब डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट. ठीक है, कंप्लीट रुका नहीं है, कम हो चुका है. कितना कम हो चुका है? इट इज लेस देन 400 ml पर डे इन एडल्ट्स. नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल इज इन द रेंज ऑफ ऑलमोस्ट 1.2 to 1.5 liters. ओके, हेलो, कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए मिनल? ये वाला, दिस वन. Done, sir. यस, ओके. सो यहाँ पे ये पहला सिम्टम क्या आएगा? द फर्स्ट सिम्टम विच वी हैव फॉर दिस कंडीशन हियर इज द ओलिगोयूरिया. ओलिगोयूरिया और ओलिगोयूरिया इज बेसिकली द डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट. बंद नहीं हुआ है. एन्यूरिया इज कंप्लीट स्टॉपेज. यहाँ पे ओलिगोयूरिया है जिसमें द यूरिन आउटपुट इज लेस देन 400 ml पर डे. ठीक है, एंड इन केस ऑफ चिल्ड्रन इट्स गोइंग टू बी लेस देन 0.5 ml per kg per hour in children. चिल्ड्रन का यूरिन आउटपुट इज एज मेजर्ड एज पर द kg per hour के हिसाब से होता है. ओके, तो वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन करके. नाउ इन केस ऑफ इन्फेंट्स इट इज लेस देन 1 ml per kg per hour in infants. इन्फेंट्स में और भी कम हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इज बॉडी वाटर एंड फ्लूइड डिस्टर्बेंसेस विल बी देयर. Okay, so the body fluid disturbances are there. Electrolyte derangement will be there. मतलब electrolytes मतलब salts. Okay, salt का value एकदम disturb हो जाएगा, salt level disturb हो जाएगा. In case of CKD, what happens? CKD में symptoms that develop slowly and initially shows very few symptoms. यानी आराम से develop होता है. यहाँ पे कैसे हो रहा है? These are all sudden symptoms. Okay. अच्छा, अभी प्रॉब्लम किधर आता है? देखो, एकेडी और एकेआई और सीकेडी का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है. दैट इज डायलिसिस, हीमोडायलिसिस. एकेआई कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू सीकेडी आल्सो. मतलब पहले एकेआई हो गया, पहली बार एक्यूट किडनी इंजरी हो गया, यू हैव ट्रीटेड, पर्सन इज नॉर्मल, बट देन ग्रेजुअली चांसेस आर देयर दैट द पेशेंट विल गो इनटू द क्रॉनिक किडनी डिसीज. ओके, ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इतना याद रखो. राइट, सो प्लीज राइट दिस डाउन फर्स्ट. डन. चल, ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिक दो अंडरस्टैंडिंग आते हैं इंजुरीज के. नेक्स्ट,
In AKI there is rapid progressive loss in renal function, बहुत ही ज्यादा किडनी फेलियर के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, whereas in CKD there will be slowly developing loss of renal function, that's called as chronic, मतलब long duration, continue long duration का ये कंडीशन है, ठीक है। What are the causes? सबसे पहला तो this is pre-renal cause, मतलब where that decreases the effective blood flow to the kidneys. Pre-renal मतलब क्या, यानी किडनी फेलियर से डायरेक्ट किडनी इन्फेक्ट नहीं हुआ है, कोई और बीमारी है उसकी वजह से किडनी फेल हुआ है, ओके यानी पेशेंट को कुछ और बीमारी है, जैसे लिवर सिरोसिस है या फिर हार्ट का कोई डिसीज हुआ है, लंग का कोई डिसीज हुआ है, उसकी वजह से किडनी फेलियर, सो वी कॉल दिस एज प्री-रीनल कॉज, where there is that decreases the effective blood flow to the kidney, जिसकी वजह से किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम हो गया। Intrinsic cause, where the sources of damage to the kidney itself, मतलब डायरेक्ट किडनी का इन्फेक्शन हुआ है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है, किडनी इंजुरी हुआ है, that is, and then comes the post renal, मतलब consequences of urinary tract obstruction, मतलब पेशेंट को कोई तो भी किडनी का डिसीज हुआ, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और उसकी वजह से किडनी फेलियर हुआ, समझ में आ रहा है। प्री रिनल में कॉज इज अदर देन किडनी, मतलब पहले किडनी इन्फेक्ट नहीं हुआ है, इन्फेक्ट कुछ और हुआ है, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन में रीनल फेलियर आया, डायबिटीज मेलाइटस है ना, डायबिटीज में किडनी फेलियर होता है, तो वो दिस इज प्री रीनल कॉज। इंट्रिंसिक मतलब किडनी का ही इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से फेलियर हो गया। पोस्ट रिनल मतलब इन्फेक्शन हो गया, पेशेंट ठीक हो गया, उसके बाद किडनी फेलियर हुआ, इन्फेक्शन किसका था, किडनी का ही था, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये कॉजेस होते हैं AKI के। वेयर एज CKD के कॉजेस क्या आएंगे, तो सबसे पहला कॉज आएगा इरिवर्सिबल एक्यूट डिसीजेस, द वन विच यू कैन नॉट क्योर, then part of disease progression, for example diabetes mellitus and hypertension, this will gradually lead to CKD, उसकी वजह से chronic renal failure हो सकता है। So these are all the causes for AKI and CKD, इसको भी लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर सकूं, ओके। सर पोस्ट रीनल एक बार बताओ ना। पोस्ट रीनल मतलब कोई तो भी किडनी का इन्फेक्शन हो गया, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन सम नेफ्रॉन्स हैव स्टॉप्ड फंक्शनिंग, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एंड देन दैट हैज लेड टू फेलियर, और देयर इज किडनी स्टोन, ओके, किडनी स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हैज लेड टू फेलियर, समझा। यस सर। Next, what is the treatment? Acute kidney injury के लिए dialysis may be required after assessing the cause, whereas here renal replacement therapy is usually required. मतलब CKD में भी ये होता ही है डायलिसिस, लेकिन फाइनल एम इवेंचुअली आपको रीनल ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा, सो इधर इन द फॉर्म ऑफ डायलिसिस और इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांट। तो डायलिसिस में पहले पेशेंट को रखते हैं CKD के, डायलिसिस अगर सक्सेसफुल नहीं होता है देन फाइनली ट्रांसप्लांट इज नीडेड, तो फाइनली ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। सो दैट इज द ट्रीटमेंट फॉर CKD एंड AKI, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, ठीक है। So this is basically the dialysis being done, right? तो ये डायलिसिस कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, that we will study in the next lecture, okay? लास्ट स्लाइड का सिर्फ फोटो ले लो और निकलो, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। थैंक यू सर। Yes, bye bye, done, चलो bye bye, see you, thank you, good night, Thank you, sir. Thank you, sir. bye बाय bye, सर, गुड नाइट। Thank you, sir. yes, bye.